Hello students, today I am going to discuss some practical problem related with compensation of employees. So we know what is the meaning of the word compensation of employees. We already discussed this thing in our previous slides and in our previous videos. Now we have to calculate that compensation of employees. Here is the question: wages in cash rupees 15,000, transport allowances 3,000, lunch allowances 10,000, uniform allowances 4,000, contribution by employer to PF yani that provident fund 1,000 rupees, then employers contribution by employees to PF 1,200, perquisite 5,000. Find compensation of employees. Whenever you start this type of questions, first of all you have to look what that question asks you. The question asks you compensation of employees. So logically you think that which item comes under that compensation of employees. Here wages in cash, wages itself and compensation of employees part. That's why whenever you solve that type of question, COE, here COE means compensation of employees. That COE is first wages plus transport allowances. Transport allowances also the part of compensation of employees, plus lunch allowances. This is also the part of compensation of employees. Next, uniform allowances, the part of compensation of employees. Next, contribution by employers to PF. Contribution by employer to PF. Okay, this is also the part. Look at the thing. Contribution by employees to PF. Employees to PF. Here employees means what? If any contribution provided by any employee to his PF, this is not part of that compensation of employees, because in compensation of employees we know whatever compensation paid by employer to employee comes under compensation of employees. Here employer does not pay anything. Whatever employer pay, that is that part comes under that compensation of employees here. Okay, so this contribution by employees, contribution by employees to PF is not come under that things, that is contribution to compensation of employees part. Okay, so we have not add that things to 1,200. Next, perquisites. We know perquisites is the part of compensation of employees. Sorry, perquisites total is what? Total is 15,000 plus then 3,000 plus 10,000 plus 4,000 plus 1,000 plus 5,000. Sorry, in total 38,000 is your answer. Okay, now in this question you see here it is written directly compensation of employees, operating surplus, rent and royalty, wages in cash, mixed income, and FIFA, interest, and you have to find that national income. So out of that topic you have to find national income. So ये शुरू करने से पहले हम लोगों को ये देखना है कि देखो NDP FC ये कैसे निकलेगा इससे. ये NDP FC जो है वो किससे आता है?
compensation of employees, rent and royalty, interest, profit. ओके, इससे आता है। और एक चीज़ है जो मैं मिक्स्ड इनकम, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे, मिक्स्ड इनकम को भी हम लोग ऐड करेंगे। सो प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके, सो नाउ दैट मिक्स्ड इनकम ऑलरेडी देयर। सो अभी हम लोग देखो, इसमें रेंट एंड रॉयल्टी, ये जो रेंट एंड रॉयल्टी देख रहे हैं तुम लोग, प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ये याद रखना, इन तीनों को हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये तीनों को बोलेंगे हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस। क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो डायरेक्टली उसका वैल्यू डायरेक्टली हम लोग बिठाएंगे। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है उस समय हम लोग रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इसको अलग अलग से सोचेंगे। सेम तरीके से कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हम लोग जानते हैं कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज किससे किससे बनता है। ये जो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है ये कैसे होता है ये हम लोग जानते हैं। सो ये भी हम लोग देखेंगे। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के समय में वेजेस और जो है वेजेस, फिर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज बाय प्रोविडेंट फंड, दैट एम्प्लॉयर्स बाय प्रोविडेंट फंड, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, फिर लंच अलाउंसेस, ऐसा अगर है तो ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इसके अंदर आएगा। तो ये डायरेक्टली अगर दिया जाता है तुम्हारा क्वेश्चन में कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोल के, तो हम लोग कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज सिर्फ वो अमाउंट को सोचेंगे जो डायरेक्टली दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तुम लोग तभी समझ में आ जाएगा। देखो इसमें डायरेक्टली ये 10,000 दिया गया है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोल के, सो इसको हम लोग 10,000 लिखेंगे। उस समय हम लोग सोचेंगे नहीं वेजेस अलग से। यानी देखो इस क्वेश्चन में देखो अच्छी तरह से वेजेस है, फिर इसके बाद हाँ वेजेस ही सिर्फ है, ये हम लोग ऐड करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इसमें गिवन है क्वेश्चन में। इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस इस क्वेश्चन में गिवन है 5,000 रुपीज़। देखो ये 2 नंबर का। सो रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन तीनों को सोचेंगे नहीं। तो ये जो रेंट एंड रॉयल्टी है प्लस इंटरेस्ट है, इन तीनों को हम लोग क्रॉस करेंगे। सो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे। ये अगर है तो याद रखना ये ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस में प्लस माइनस करके इसमें इंक्लूड हो गया है ये 5,000 रुपीज़। सो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम इस क्वेश्चन में दिया गया है 1,000 रुपीज़। इन टोटल कितना आया, इन टोटल है 16,000। ओके, ये है एनडीपीएफसी। अभी हम लोगों को निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का रूल्स क्या है, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस एन फीफा। एन फीफा ओके, 16,000 प्लस एन फीफा कितना है 4,000। इन टोटल तुम्हारा कितना आया 20,000। ये 20,000 जो है ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये है तुम्हारा आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग देखें। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है देखो, वेजेस इन कैश, सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, रिटेन अर्निंग्स, दैट इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी, टैक्स ऑन प्रॉफिट्स, इसके बाद मिक्स्ड इनकम। फिर बोला है कि डोमेस्टिक इनकम को निकालने के लिए। ये डोमेस्टिक इनकम क्या है ऑलरेडी हम लोग ये डोमेस्टिक इनकम को हम लोग अलग से देखो। ये जो क्वेश्चन में बोला गया था एनडीपीएफसी, सॉल्यूशन में देखो एनडीपीएफसी ये डोमेस्टिक इनकम है। एनडीपीएफसी के साथ
अगर एनफीफा को ऐड करेंगे तो नेशनल इनकम निकल के आएगा। सो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि एनडीपीएफसी इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, और इस डोमेस्टिक इनकम के साथ अगर एनफीफा को ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा एनएनपीएफसी। सो ये रूल्स हम लोग पहले ही जान चुके हैं। अभी क्या करेंगे, हम लोग डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, यानी एनडीपीएफसी निकालेंगे। तो ये और आसानी हो गया, क्योंकि एनफीफा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है, और इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि डोमेस्टिक इनकम निकालो इससे, इस क्वेश्चन से। सो अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। सो पहले जो बात है, पहला जो इम्पोर्टेंट बात है वो है रूल्स। क्या हम लोगों का क्या है रूल्स है, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू COE प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम। मैंने क्या बोला, COE, रिटेन अर्निंग्स, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को एक साथ, ये COE रेंट एंड रॉयल्टीज, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तीनों को हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोल सकते हैं। इन तीनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस है तो डायरेक्टली इसको बिठाएंगे ऑपरेटिंग सरप्लस बोल के, मगर इस क्वेश्चन में देखो ऑपरेटिंग सरप्लस बोल के कुछ नहीं है। सो ये ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में हम लोग सोचेंगे नहीं। ओके, सो ये तीनों को हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे कि ये रेंट एंड रॉयल्टीज प्लस प्रॉफिट प्लस दैट इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके, नाउ अभी सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो सॉल्यूशन इधर से शुरू करते हैं। ओके, COE का यानी कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये जो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है ये अच्छी तरह से देखो क्वेश्चन में, ये डायरेक्टली कुछ गिवन नहीं है। इससे पहले इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बारे में डायरेक्टली गिवन था। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बारे में कुछ गिवन नहीं है। सो ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय किससे आता है ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, पहला जो वीडियो है उस वीडियो में जान चुके हैं। सो ये कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें देखो एक नंबर, ये कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉइज का बोलते हैं 1+1+3, यानी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ये कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, ये जो 3 नंबर है, ये वाला ये 2 नंबर है, वो तो एम्प्लॉइज किया है ना। इससे पहले मैंने क्या बोला है कि एम्प्लॉइज का कुछ भी नहीं आएगा, यानी एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन तुम्हारा डोमेस्टिक इनकम में नहीं आता है। सो ये याद रखना। इसके बाद रेंट एंड रॉयल्टीज, इस रेंट एंड रॉयल्टीज का 6 नंबर का देखो, इसमें बोला गया है रेंट एंड रॉयल्टीज के बारे में। इसके बाद प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 8000। इसके बाद इंटरेस्ट 2000 रुपीज। इसके बाद मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम है कुछ, हाँ ऑलरेडी गिवन है 9 नंबर, ये 8000 ना लिख के इसको हम लोग लिखते हैं 8 नंबर 8, एंड इसको हम लोग लिखते हैं दैट 5th, एंड इसको लिखते हैं हम लोग 9। अभी नंबरिंग हो गया, तो अभी तुम लोग बोल सकते हो कि सर ये कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज ये वगैरह, ये जो इसमें देखो दिया गया है, ये 4 नंबर रिटेन अर्निंग, ये 4 नंबर रिटेन अर्निंग एंड टैक्स ऑन प्रॉफिट्स। सर ये दोनों का क्यों नहीं आएगा? याद रखना, ये जो 4 नंबर प्लस ये 7 नंबर जो है, ये ऑलरेडी 8 नंबर में इंक्लूड किया गया है। ओके, ये इंक्लूड हो गया है 8 नंबर में, ये दोनों 8 नंबर में इंक्लूड हो गए थे। अगर तुम्हारा प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, उस समय तुम इसको डिवाइड नहीं करोगे,
यानी प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो रिटेन अर्निंग्स एंड टैक्स ऑन प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये याद रखना, ये सोच लेना। सो ऑब्वियसली हम लोगों ने ये रिटेन अर्निंग्स को और इस टैक्स ऑन प्रॉफिट को नहीं लेके आएंगे। और सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज़ किस लिए नहीं आएंगे, ये तो हम लोग जानते हैं कि एम्प्लॉइज़ का नहीं आता है। तो अभी सॉल्यूशन करते हैं। 1 नंबर का वैल्यू कितना है 8000 प्लस 3 नंबर का है 5000 प्लस 6 नंबर का है तुम्हारा 6 नंबर का 5000 प्लस इसके बाद आता है 8000, इसके बाद 2000 इंटरेस्ट, इसके बाद मिक्स्ड इनकम 3000 रुपीज़। ओके, इन टोटल कितना आता है 8 प्लस 5 10,000, 16 प्लस 26 28 31। This 31,000 is your domestic income. ओके, सो नेक्स्ट डे में कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो आज तक मैंने जो किया है, जो क्वेश्चन जो थियोरेटिकल पार्ट अभी तक हुआ है इस डोमेस्टिक इनकम से, इनकम मेथड में, तो इसका सिंपल एक प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।